A very good afternoon to you. This is Latika Shami from Press Legend 24.online. I welcome all my viewers. Right now, I am at Centerpoint Hotel, and there was a huge program which is known as Advantage Vidarbh Gateway to Growth, which has been organized, and the Patrakar Parishad was done for this program. The highlights has been already given by the Honorable Minister Gadkari Sahab, Nitinji Gadkari, for the growth for Nagpurians as well as for the people of India. If you can see, that is Association for Industrial Development. There are partners supported for this program, the knowledge partner and all, and advantage of Vidarbh Gateway to Growth regarding Vidarbh Mega Industrial Exhibition, Business Conclave and Investment Summit. This is all about the future of the people. We deal with many things like when it comes to business, when it comes to different priorities, when it comes to gold, silver, platinum, palladium, and other mineral explorers, we can say, when it comes to another things, when it comes to work for the people, as many people has a problem that this BJP is not helping us out. But when it comes to this advantage with her, this is one of the tool for the people to understand that there is something happening for Nagpur. As the Honorable Chief Minister of Maharashtra also stated in many of the statements that Shri Devendra Fadnavis sir is also in association with Advantage with her. The moral of the story is when it comes to work, when it comes to business, when it comes to different sectors, we have a problem. Our community has a problem that we are not having work for the youngsters, we don't have work for any other things. But this is a starting point for them. In future, they'll get employment also. This is led by Honorable Shri Nitin Gadkari Sahab. In his statements, he had stated many things. You will get to know regarding this. So be with me. Like a channel, subscribe, press the bell icon. With Latika Shami for Press Legend 24.online. With cameraman Vivek, I'm Latika. Thank you so much. आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं अनुरोध करता हूं हमारे अध्यक्ष आशीष जी काड़े से कि वे पुष्प देकर के गडकरी साहब का स्वागत करें। साथ ही मैं विविध क्षेत्र में उत्पादन श्रेणी, यंत्र सामग्री, सेवा, तो ये सब कंसर्निंग लोगों को हमने इसमें बुलाया है। इसमें अलग अलग सेमिनार्स होंगे और जो सेमिनार्स पूरक होंगे सबको एक दूसरे को इसका फायदा होगा। इनोवेशन जो है उसमें भी हमने सहायक प्रणाली खड़ी की है। उद्योगों की क्षमता बढ़ाना, एक्सपोर्ट के लिए मदद करना, ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट और एक्सपोर्ट इंक्रीज, ये हमारी नीति है। तो ये भी करने के लिए हमने बिजनेस कॉन्क्लेव जो किया है, मार्केट में नवीन ट्रेंड्स हैं और इंडस्ट्री के सामने जो चैलेंजेस हैं, इन सब बातों की चर्चा है, एक्सपर्ट लोग आकर करेंगे। बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री एक्सपर्ट लोग जिन्होंने ऑलरेडी इसमें रहने के बारे में स्वीकृति प्रदान की है। पैनल डिस्कशन, सेमिनार, परिषद 30 से ज़्यादा है। इसमें जो चर्चा होगी वो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट पे होगी और विशेष रूप से मीडिया के लोग अगर इसमें अलग अलग प्रकार से उपस्थित रहकर इसको पब्लिसिटी देंगे तो इसका बहुत अच्छा फायदा होगा। एडवांटेज विदर्भ में स्टील, डिफेंस, विमान वाहतूक, बांबू, दुग्ध व्यवसाय, शिक्षण, ITES, लॉजिस्टिक, स्टार्टअप्स, फार्मास्यूटिकल्स, अक्षय ऊर्जा, पर्यटन, वस्त्रोद्योग, गोल्ड एंड विशेष रूप से ये जो डायमंड और बाकी बातें उसकी इंडस्ट्री यहाँ खड़ी हो, ये रोकड़े जी भी कोशिश कर रहे हमारे मेंबर। ये हमारे यहाँ गोल्ड का भी बड़ा काम, बहुत बड़े प्रमाण पर गोल्ड का काम करने वाले लोग हैं। इसके साथ स्टार्टअप, इकोसिस्टम्स, इनके लिए भी हमने सेमिनार और टेक्निकल चर्चाएं रखी है। करके गडकरी साहब की मदद से इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग अलग एजेंसीज जो हमारी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट सर्विसेज देती है, उनका पार्टिसिपेशन इस बार हमने लाया है। जैसे कि जेम पोर्टल जो है हमारा एक गवर्नमेंट पोर्टल है जिसमें कि अलग अलग हमारे यहाँ के MSMEs और इंडस्ट्रीज प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, उसमें बिड करते हैं, उसमें अपनी गुड प्रोडक्ट्स जो है वो गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं। उसके चलते काफ़ी इश्यूज आते हैं, ऑपरेशनल इश्यूज है,
तो जेम की तरफ से, जेम डिपार्टमेंट से सीनियर लोग यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, हमारे इंडस्ट्रीज़ के जो इश्यूज़ है उनको सुनेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। वैसे ही सेबी की तरफ से एक इन्वेस्टर्स मीटिंग भी होगी, इन्वेस्टर्स का एजुकेशन होगा। छोटी कंपनीज जो पब्लिक जाना चाहती है या उस लेवल की कंपनीज जो है, जिन्होंने शायद विचार नहीं किया हो, इस तरह की संकल्पना थी कि हमारे रीजन में जो इंडस्ट्रीज़ है, ये इंडस्ट्रीज़ एक नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की इंडस्ट्रीज़ बने। इसके लिए हमको किस तरीके का कोलैबोरेशन, इकोसिस्टम आपस में तैयार करना है और किस तरीके के हमारे इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट की गरज है, ये इस एसोसिएशन को एक उद्देश्य दिया गया। और उसके अलावा एक उद्देश्य ये था कि विदर्भा में जो नेचुरल रिसोर्सेज है काफ़ी हद तक के पॉपुलर है और उसके चलते इंडस्ट्रीज भी काफ़ी लगी है, इसको कैसे बढ़ावा दिया जाए। हर एक ज़िले में जो उस ज़िले की जो खास रिजर्व्स है या उस ज़िले की जो नेचुरल रिसोर्सेज है या जो स्ट्रेंथ्स है, उसको हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट करके मैक्सिमम इंडस्ट्रीज हम यहाँ अट्रैक्ट कर सकें। तीसरा एक उद्देश्य था कि हमारे यहाँ की जो यूथ है, अगर इंडस्ट्रीज यहाँ लगेंगी तो ऑब्वियस है कि जॉब्स तो यहाँ बढ़ेंगे ही और हमारे यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लेकिन उसके अलावा हमारे यूथ को इंस्पायर किया जाए कि वो एंटरप्रेन्योर्स बनने का विचार करें। तो आज जो एग्जीबिशन अगर होता है, सक्सेस स्टोरीज हम हाईलाइट करते हैं, उसको चलते हमारे यहाँ की यूथ जो है वो बिजनेस के बारे में सोचेंगे, अपने खुद का व्यवसाय के बारे में सोचेंगे, हमारे यहाँ के स्टार्टअप जो है वो एनकरेज होंगे। इस उद्देश्य से हमने पहला प्रोग्राम लास्ट ईयर जनवरी में एडवांटेज विदर्भा 2024 किया था। आप लोग सबके सपोर्ट से, आप लोग ने जो मीडिया में हाईलाइट किए थे उससे अच्छे रीजनेबल सक्सेस मिला हमको। कुछ गलतियां हुई, वो इस बार सुधारेंगे, नई गलतियां करेंगे, लेकिन प्रोग्राम अच्छा रहा और उसी के चलते हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि इस रीजन की इंडस्ट्रीज को ये प्लेटफॉर्म, अलग अलग सेक्टर्स जो पिछली बार थे इस बार कुछ जो खासकर महोत्सव होता है नागपुर का, ये बहुत प्रसिद्ध है और इसका विज्ञापन बहुत बढ़ चढ़कर होता है। अखबारों में होर्डिंग्स लगते हैं बड़े बड़े, लेकिन जो डिजिटल मीडिया जो है, जो पोर्टल वाले हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, उन्हें हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है। तो इस ओर आपसे निवेदन है कि विशेष रूप से थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, आपकी बात तो मैं उनके कानों पे डालूंगा, अगली बार जरूर इसका विचार करेंगे। एक अभी सवाल खत्म करेंगे। एक थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, भंडारा में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है वहाँ बड़ा स्फोट हुआ है और 8 लोगों का मृत्यु हुआ है, 7 जख्मी हुए हैं। ये प्राथमिक माहिती है। मैं आप सबको अनुरोध करूँगा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, सब लोग 1 मिनट खड़े होकर उनको श्रद्धांजलि अर्पण करें, बाद में आगे करें। जबाबदारी देणार आहे आपण सगळे याच्याकडे सल्ला द्या आणि या 2 युनिव्हर्सिटीज आपल्याकडे नागपुरात तयार झाला पाहिजे। पुढे करत असेल तर त्यांना आम्ही मदत करू, नसेल पुढे करत तर मी यांना विनंती करतो तुम्ही पुढाकार घ्या। आणि याच्यातून आता आम्ही तुम्हाला सगळ्यांना विसरलो, आम्ही रेडी साईडच्या बाजूला 16,000 फूट कमर्शियल लँड महानगरपालिकेची आम्ही बाजारभावाने रेडी आम्ही 30 वर्षाच्या लीजवर घेतली आणि त्याच्यामध्ये मधली बिल्डिंग जागा आहे, त्याच्या मागे आणि एक जागा आमच्या ॲग्रोव्हिजनची 7 मजली बिल्डिंग म्हणजे लॅबॉरेटरी आहे शेतकऱ्यांच्या। आणि आता या आएंगे लोग तो बड़ा प्लानिंग करके रखो, अभी फेज 1 फेज 2 फेज 3 जैसे पहले आएंगे।